Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you so much. So it's good to see people of all ages. Thank you for coming. Welcome to Speaking of Theatre. So it's the second year we are doing this conference of theatre. So we began this morning with a panel discussion talking about how audience is important in the realm of theatre. And then now there was also a workshop here in the morning on djembe. And this is the third event of this year's Speaking of Theatre. We call it From Scratch. So what is From Scratch? So From Scratch originated as a very curious idea last year. The idea was simple. So we thought we should bring two artists from different art forms together and give them 1 week and see what comes out. So it was not a cruel challenge that we wanted to throw on the artists, but it was something that we wanted to see what comes out of two different art forms, two very diverse art forms. We did that experiment last year with a mask artist and a musician, and the outcome was spectacular, to say the least. So that encouraged. So the mask artist was Pooja Sarup from Mumbai, and the musician was Chris Avinash from Bangalore. So that outcome encouraged us to continue this experiment further, and this time we became a little braver. So we brought in two very diverse art forms. One is Bharatanatyam, the other is Dastan Goi. And we were very fortunate to find two beautiful artists in these art forms, Kumuda and Kapil. So Kumuda and Kapil met 3 weeks ago. They did not know about each other's art form. They did not know each other. So they met 3 weeks ago for the first time, and so most of the last 3 weeks have gone in, racking of brains on what can be brought together in between these two art forms and create something that we can call a performance. So from there, in the last 3 weeks, we have come to this stage where we are going to witness something spectacular, witness something probably for the first time ever in these art forms, in the history of these art forms. So I don't think Dastan Goi and Bharatanatyam have come together ever before. So we are privileged audience for something like this. Kumuda is also accompanied by two more Bharatanatyam artists, Abhaya Lakshmi and Prabhavati. Abhaya Lakshmi and Prabhavati. So I'm used to calling them Abhaya and Prabha. So there is so Abhaya Lakshmi and Prabhavati and Kumuda are from Temple of Fine Arts who conduct Bharatanatyam classes here in Attagalata. So that became our access to them. And Kapil is a theatre artist, so a very good friend of ours, and a very recent Dastan Go as well. So this combination brought together a lot of discussions, a lot of brainstorming, and then a lot of action, because one is a visual art form and one is an oral art form. So they brought together something beautiful that we are going to witness today. So yeah, so please switch off your mobile phones, no flash photography, and yeah, so we call it what? From marbles to mudras, and from abhinaya to ayari, and the fantasy world to fancy footwork. So ladies and gentlemen, we present to you Dastan-e-Bharatanatyam. कहो जो बात तो ऐ दोस्त आली शान कहो, सुनाना चाहते हो आओ दास्तान कहो। ख्वातीनो हजरात, दास्तान गोई की इस महफिल में आप सभी मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन और हजरात का बहुत बहुत खैर मक़दम है। मानी वेलकम टू दास्तान गोई। दास्तान गोई एक ऐसा फन कि जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं, यानी सुनाई जाती हैं। अच्छा, एक बात पहले ही वाज़ेह कर देना चाहूँगा कि मैं बहुत बार ये फन बोलूँगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस सेंस में ना लिया जाए कि हैविंग फन है काटा गला। फन उर्दू में कहते हैं आर्ट, फनकार यानी आर्टिस्ट।
तो दास्तान कोई एक ऐसा फन है कि जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं। आज की तारीख में ये एक जरिया है कोई भी दास्तान सुनाने का, बशर्ते उनमें 4 जुज़ हो, 4 हिस्से हों। 4 हिस्से क्या हैं? बज़्म, रज़्म, तिलिस्म और अय्यारी। बज़्म क्या है? जो यहाँ जमी हुई, सुनने वाले हैं और सुनाने वाले हैं, यही बज़्म है। रज़्म कि जिसमें लड़ाई हो, वॉर हो, दो फौजों के बीच में जंगे हो। तिलिस्म एक ऐसी जादुई दुनिया की जो जादूगर अपने शहर से बनाते हैं, ऐसी दुनिया की जैसे मसलन कहीं पर कोई ऐसी बिल्डिंग है कि जिसके अंदर कोई भी घुसे, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, वहां घुसते ही फटाफट अंग्रेजी बोलने लगता है। आज भी शहर बेंगलोर में आप ऐसे इमारतों के असरात देख सकते हैं। हम और आप इसे इंफोसिस, विप्रो वगैरह तो कहीं पे धुएं का पुल बना हुआ है जिसके अंदर शेर बैठे रखवाली कर रहे हैं, और उस पुल के ऊपर 3 मंजिला इमारत बनी हुई है जिसके अंदर जादूगर बैठे इबादत कर रहे हैं, उनको नए नए इनाम मिल रहे हैं जादूगरों के खुदा से। तो ये है तिलिस्म। चौथा है अय्यारी, यानी लोगों को बेवकूफ बनाना, अलग अलग तरकीबों से, कभी नई आवाजें निकाल के, कभी नई शक्लें बना के, भेष बदल के लोगों को बेवकूफ बना के अपना काम निकालना, यह है अय्यारी। तो ये 4 जुज़ से बनती है दास्तान। अब दास्तानें सुनाने का रिवाज तो उतना पुराना है जितना पुराना कि खुद इंसान, या यूं कह लीजिए कि इंसानियत। लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई है एक दास्तान, वो है दास्तान अमीर हमजा। अब ये अमीर हमजा कौन? अमीर हमजा अमीर बातौकीर साहिब क़िरा बेटे हैं सरदार खाने काबा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के और हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा लगते हैं। और इन दास्तानों में वो मुकाबला करते हैं उन जादूगरों और बादशाहों और शहंशाहों से जो खुद को खुदा कहते हैं या झूठे खुदाओं को मानते हैं। और इन मुहिमों और मार्कों में उनके बचपन का साथी और शहंशाह अय्यारान अमर अय्यार उनका साथी और मददगार। अय्यार मतलब ट्रिक्स्टर, जो अय्यारी करे। अय्यारी मतलब बेवकूफ बना के अपना काम निकाले। तो हाज़रीन, दास्तान अमीर हमजा को सुनने और सुनाने की रवायत यूँ तो दुनिया के तमाम मुल्कों और खित्तों में फैली है, लेकिन इस फन ने सबसे ज्यादा तरक्की पाई हिंदुस्तान जन्नत निशान कि 19वीं सदी में जब इस जुबानी रवायत के छपने छपाने की दाग बेल पड़ी, तो लखनऊ में मुंशी नवल किशोर ने वहाँ के सब बड़े दास्तान गोयों को जमा करवा के उनसे ये दास्तानें लिखवाई। अब जरा हिंदुस्तान के उन अजीम फनकारों की कारनामा देखिए कि वो दास्तानें जो दुनिया भर में महज एक जिल्द यानी एक वॉल्यूम में मशहूर थी, उसको उन्होंने अपने इमेजिनेशन और इम्प्रोवाइजेशन से इतना फैलाया कि वो फैलते फैलते 46 यानी 46 वॉल्यूम्स में जा फैली और हिंदुस्तान जन्नत निशान के अजीम तरीन अदबी कारनामों में गिनी गई। लेकिन 20वीं सदी में कहीं इस बेशकीमती विरासत को हिंदुस्तान और आलमी उर्दू हिंदी में यकसर फरामोश कर दिया। तो दास्तान गोई की ये महफिलें और उनका आगाज नौ यानी रिवाइवल एक नजरानाए अकीदत यानी डेडिकेशन उन अजीम फनकारों के नाम कि जो शायर भी थे, फनकार भी, अदीब भी थे, अदाकार भी। ये नजरानाए अकीदत सैयद मोहम्मद हुसैन जा के नाम, मीर बाकर अली के नाम, अंबा प्रसाद रसा के नाम और जनाब शमसुर रहमान फारूकी के नाम की जिनकी बदौलत ये दास्तानें हम तक पहुंची, दास्तान कोई रिवाइव हुई और हमसे दास्तानें आप तक पहुंच रही। लेकिन हाज़रीन, आज की दास्तान अमीर हमजा नहीं, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि आज की दास्तान ही नहीं, आज की दास्तान एक सफर है जो 2 फन कि इस सफर में 2 फन हम सफर
एक फन आपके सामने है जिसका तारुफ हो रहा है, और दूसरा फन वो है कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, पला बढ़ा, परवान चढ़ा, ठोकर लेके थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और आज अपने पूरे शबाब पे आलम फनकारी में जलवा अफरोज। भाव, ताल, राग से मिलकर बना ये फन भरतनाट्यम, और जैसी कि रवायत है, हर भरतनाट्यम की शुरुआत पुष्पांजलि से होती है। लिहाजा हाजरीन, पेशे खिदमत है पुष्पांजलि। तजम तरित तदिमित गिट तक तक तदिगिन तुम तजम तरित तदिमित गिट तक तक तदिगिन तुम तजम तरित तदिमित जब सफर साथ में है तो शुरुआत अलग क्यों हो? तो अभी जो आपने पुष्पांजलि के शक्ल में देखा, वही साकी नामा के शक्ल में देख लीजिए। साकी नामा जो कि रवायत है, दास्तान गोई शुरू होने से पहले साकी नामा सुनाते हैं। साकी नामा यानी पिलाने वाले की तारीफ। तो जो अभी आपने पुष्पांजलि की शक्ल में देखा, अब साकी नामा की शक्ल में सुन लीजिए। इरशाद कहना है तो पिला दे वो जाम ओ मेरे साकिया, बनाए जो मेरा रदीफ ओ काफिया, जो ताकत ना रहे मुझ में बयां के लिए, चले आना मुझ में दास्तां के लिए। तेरे कदमों में रखूं अपने पांचों हवास, कि मैं ना रहूं मुझ में हो तेरा वास, कि राग ताल भाव सब बराबर रहे, दिखे सबको सब कुछ जहां पर रहे। है मुश्ताक सब अहले महफिल एजा, करें आगाज दास्तां बिस्मिल्लाह। तो हाज़रीन, सफर शुरू हो चुका है, और जैसा कि हर सफर के शुरुआत में होता है तारुफ, दास्तान गोई का तारुफ हो चुका है। अब बारी है भरतनाट्यम की। तो सवालों में सवाल ये उठता है कि भरतनाट्यम है क्या? तो सवाल का जवाब फनकार इस तरह देता है कि खूबसूरत लिबास, अदाओं भरी चाल, और कभी ना फीका पड़ने वाला लबों का तबस्सुम। लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसे उस्ताद का साथ कि जो शागिर्द की उंगली पकड़ के उसे कला की ऊंचाइयों तक ले जाए। बात थोड़ी गहरी है, शायद सुन के पूरी समझ में ना आए, तो आइए देख भी लेते। Jai
हाज़रीन, तारुफ हो चुका है, लिहाजा अब वो किया जाए कि जो यहाँ हम करने आए। अब इस सफर में जरूरी ये है कि एक दास्तान सुनाई जाए कि जिसमें कि जो दास्तान दोनों फन मिलाकर सुनाए। क्या ख्याल है? इरशाद तो गुलगुना कशाने आरिज़े शाहिदे बयान इस तरह इरशाद फरमाते हैं कि सरस्वती माँ की कृपा से विद्या मिलती रहे, लक्ष्मी की कृपा से घर में चूल्हा जलता रहे और इंद्र की कृपा से सूरज के सामने बादल आते और जाते रहें, ताकि स्पीकिंग ऑफ थिएटर के अलग अलग जलसों में सामईन आते रहें। और सीता की ये दास्तान बार बार, हजार बार दुनिया भर में सुनाई जाती है। तो हाजरीन, नगरियों में नगरी है मिथिला और राजाओं में राजा है मिथिला का राजा जनक, कि जिसके राज में खुशहाली ही खुशहाली है, कि जिसकी प्रजा बहुत खुश है, कि जहां खेती बाड़ी होती है और व्यापार होता है और इकोनॉमी जीडीपी वगैरह बहुत तेजी से ग्रो करती है। और इस राज का जो राजा है वो बहुत अक्लमंद है, बहुत दयालु है और हर तरह के फन का मुरीद और पैरोकार। हर दिन महल और उसके बाहर चित्रकला, नृत्य, गीत, संगीत के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसका लुत्फ प्रजा और राजा बराबर उठाते रहते हैं। तो हाजरीन, बसंत के दिनों की एक हसीन सुबह थी और धान बोने के लिए खेत जोते जा रहे थे। राजा जनक खुद इस काम का मुआयना करने के लिए खेतों में थे और एक हल के बराबर चल रहे थे। जी हाजरीन, बिल्कुल सही सुना। उस वक्त के राजा जमीन पे होते थे और अपना काम करवा रहे होते थे। आजकल के राजाओं की तरह नहीं कि कहने को तो प्रजा ने चुनकर राजा बनाया, लेकिन प्रजा के हालचाल से इनको कोई सरोकार है ही नहीं। तो हाजरीन, राजा जनक हल के बराबर चल रहे थे कि एक मुकाम पर आकर वो हल रुक गया, आगे न जा सका। राजा ने देखा तो हल के कुछ कदम आगे गीली खुदी हुई जमीन पर कुछ रखा। पास गए तो क्या देखते हैं कि एक नन्ही सी बच्ची है जिसकी उम्र अभी महज कुछ दिन ही रही होगी, पड़ी वहां मजे से हाथ पैर चला रही है और किलकारियां मार रही। जैसे लग रहा था कि इंसान को इस खूबसूरत और मासूम बच्ची की शक्ल में एक नायाब तोहफा भेजा है।
राजा ने उसको बढ़ के उठाया और उठाकर जो उसके मुंह से धूल साफ की तो यूं लगा जैसे 14वीं का चांद पूरे बादलों से बाहर आ गया। राजा खुश होकर उसे घर ले आए, उसका नाम रखा सीता और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगे। वक्त गुजरता गया, सीता बैठने लगी, चलने लगी, दौड़ने लगी और एक दिन वो भी आया कि वो अपनी सहेलियों के साथ बाग में, आंगन में खेल रही। जनक हैरान रह गए। वो धनुष जिसे बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान मुश्किल मिलकर हिला पाते थे, सीता ने उसे इतनी आसानी से हटा दिया। ये नजारा देखकर राजा जनक समझ गए कि ये कोई आम लड़की नहीं है और आगे चलकर इसका वर जो होगा वो भी इसके बराबर का होना चाहिए। हाज़रीन, जमाने बीत चुके हैं, सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी इस मामले में कुछ बदला नहीं। आज भी हमारे समाज में अगर कोई लड़की पीएचडी कर ले तो माँ बाप की सबसे पहली शर्त यही होती है कि कोई देखिए हमारी लड़की ने तो पीएचडी किया है, लड़के की क्वालिफिकेशन कम से कम उसके बराबर तो वो कम ना हो। तो हाज़रीन, पूरे नगर में मुनादी करवा दी गई कि जो भी रौद्र शिवा का वो धनुष तोड़ेगा वो ही सीता से ब्याह करने के काबिल माना जाएगा। उन्हीं दिनों अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा बेटा राम मिथिला आया हुआ था और उस राह से गुजर रहा था कि जहां सीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही। उसकी सहेलियों ने जानबूझकर उसे उस तरफ धकेल दिया जिधर से राम आ रहा था। स्वयंवर हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वो धनुष तोड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत तकरीब में और जलसे में राम और सीता का ब्याह हुआ और राम ने सीता को लेकर अयोध्या आ गए। अब हाज़रीन, इंसान हो या देवता, वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं। तो राम और सीता के मिलन के बाद वो आगे बढ़ा और एक वक्त वो भी आया कि जब सीता की किस्मत पर काले बादल मंडराने लगे। राजा दशरथ से मिली हुई 2 मुंह मांगी मुरादों का इस्तेमाल करके राम की सौतेली मां कैकेयी ने राम के लिए 14 बरस का वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी मांग दी। दशरथ ने लाख समझाया, लेकिन कैकेयी एक ना मानी। आखिरकार बड़े भारी मन से दशरथ और पूरी प्रजा ने उन्हें विदा किया और वो जंगल निकल गए और एक ऐसे खूबसूरत जंगल में रहने लगे कि जहां हर तरह के फल थे, हर रंग के फूल थे,
दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे कि जिनकी दूधिया चोटियां थीं और उन पहाड़ों के बीच से नदियां बह रही थीं। हाज़रीन, इस जंगल की खूबसूरती का क्या बयान हो, बस यूं समझ लीजिए कि गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो बस यही है, बस यही है, बस यही। तो हाज़रीन, इस खूबसूरत वादी में राम, लक्ष्मण और सीता रहने लगे। तो एक अच्छे दिन, बहुत हसीन सुबह, जब सीता फूल चुन रही थी बाग से, तो उन्होंने झाड़ियों के पास कुछ देखा। पास गई तो क्या देखती हैं, एक हिरन है जो बहुत ही हसीन और खूबसूरत है कि जिसके पूरा बदन सोने का है और उस सोने के बदन पर चांदी के गोले हैं। गर्दन और सर में हीरे, जवाहरात, जमुर्रद, अकीर, फिरोजे और नीलम वगैरह चढ़े हुए हैं और वो इधर से उधर छलांगे मारता हुआ भाग रहा। अब हाज़रीन, मोह तो सबके लिए है, क्या इंसान क्या देवी देवता। सीता उस हिरन पर मोहित हो गई और उससे खेलने लगी। वो हिरन भी अच्छे से अपने को खिलवाने लगा। ये नजारा पीछे से राम ने आकर देख लिया। लेकिन जैसे ही राम वहां आए, उनके कदमों की आहट पाकर हिरन वहां से फिर झाड़ियों में भाग गया। अब मसला समझिए कि एक तो आपकी नई नवेली खूबसूरत दुल्हन, ऊपर से आप उसको शादी के फौरन बाद ही जंगल में रहने के लिए ले आए। तो अब इतना तो हक बनता है ना कि अगर उसको चीज पसंद आ जाए तो लाकर उसे दे दिया जाए। तो एक पत्नी व्रता पति की तरह राम ने उस हिरन को पकड़ के लाने का जिम्मा उठाया, लक्ष्मण को सीता की हिफाजत में छोड़ा और खुद उस हिरन का पीछा करने लगे। पीछा करते करते उन्हें ख्याल आया कि आसपास के सारे परिंदे और जानवर गायब हैं, मतलब कोई फरेब, जादू, जालसाजी इसके अंदर है। लेकिन उन्होंने पीछा करना जारी रखा और वो हिरन बुलाचे मारता हुआ उन्हें जंगल में बहुत दूर ले गया और एक बहुत बड़े सायादार पेड़ के नीचे आकर रुक गया जिसका तना बहुत मोटा था और वो हिरन उस तने के पीछे झुक गया। राम बहुत आहिस्ता से उस तने के पीछे गए तो अब जो दूसरी तरफ से हिरन निकला तो वो कोई हिरन ना था, एक हट्टा कट्टा जबरदस्त फौलादी तरीके का जादूगर था कि जिसके पूरे सर पे, पूरे बदन पे कालिक बनी हुई है, जिसके सर पे सांप लिपटे हुए हैं, जिसके बाल की जगह रस्सियां फूटी हुई हैं और वो जादू की छड़ी लिए। उसने राम से कहा, मारीच नाम है मेरा, मैंने जादू से हिरन का भेष बनाया था तेरी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए। अब लक्ष्मण तेरी मदद करने सीता को छोड़कर यहां आएगा और पीछे से मेरा भतीजा रावण उसे उठा ले जाएगा। राम ने सोचा कि क्या बात कर रहा है, मेरा भाई तो मेरी बात पत्थर की लकीर की तरह मानता है, वो तो वहां से हट ही नहीं सकता कि इधर इसने चिल्लाया, राम की आवाज बना के जोर से चिल्लाया, लक्ष्मण, और ये कहकर जमीन पे वो छड़ मारा जिससे एक धुएं का बादल बरामद हुआ और वो जादूगर खुद उस बादल में समा कर गायब हो गया। इधर आश्रम में जब सीता और लक्ष्मण ने राम की आवाज सुनी तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि वो जाकर राम की मदद करे। लक्ष्मण ने कहा कि भाई मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए छोड़ के गए हैं, मैं नहीं जा सकता। सीता खामोश हो गई। बाद एक लम्हे के जो सीता ने पलटकर लक्ष्मण की तरफ देखा तो लक्ष्मण ने उनकी आंखों में ना जाने क्या देखा कि जैसे अंदर ही अंदर जलकर रह गए और फौरन उस जंगल की तरफ जाने लगे जहां से राम की आवाज आई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीता के चारों तरफ एक लकीर खींची और सीता से कहा, कुछ भी हो जाए वो लकीर पार ना करे। ये काम करके लक्ष्मण जंगल रवाना हुए। अभी लक्ष्मण को गए कुछ लम्हे ही बीते थे
कि एक कमजोर बूढ़ा सा फकीर आया और सीता से भीख मांगी। अब सीता अजीब कश्मकश में थी। लक्ष्मण की बनाई लकीर पार न करे तो फकीर को भीख देने का धर्म कैसे पूरा हो। इसी कश्मकश में एक कदम आगे एक कदम पीछे करते करते आखिरकार उन्होंने वो लकीर पार कर दी। लकीर के पार की मिट्टी में पैर पड़ना था कि उसने अपना भेद बदला और वो एक जादूगरों का शहंशाह रावण बन गया, जिसके 10 सर थे और जिसके 10 सरों से फौलादी हाथी की आवाज से जमीन घबराने लगी। और उसके इस भयानक रूप को देखकर सीता बेहोश हो गई। रावण ने सीता को अपने रथ में बिठाया और लेकर तुरंत छूट गया। जब राम और लक्ष्मण जंगल से वापस आए तो सीता को गायब पाया। मालूम हुआ कि मारी सच कहता था। फौरन ही वो लोग उसकी तलाश करने के लिए जंगल में निकले। जैसे जैसे आगे जाते गए उनको वो असरात मिलते गए कि उनको पता चला कि सीता को किस तरफ ले जाया गया है। सबसे पहले 2 बालियां मिली जो राम ने लक्ष्मण को दिखाई कि पहचानो क्या ये सीता की हैं। लक्ष्मण ने नहीं पहचाना। फिर 2 कंगन मिले। राम ने यही अमल फिर किया। लक्ष्मण ने फिर नहीं पहचाना। फिर और आगे बढ़े तो 2 पायल मिले। अब जो राम ने लक्ष्मण को दिखाया तो लक्ष्मण देखते ही उछल पड़े कि अरे ये तो सीता मां की हैं। राम को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने पूछा कि भाई तुमने तो कंगन नहीं पहचाने, बालियां नहीं पहचानी, सिर्फ पायल क्यों पहचानी? तो लक्ष्मण कहते हैं पहचान क्या हो बालियों की कि नजर वहां तक न गई मेरी। पहचान क्या हो कंगन की कि नजर वहां तक भी न गई मेरी। हाँ, हर सुबह जब पांव छूता हूं मां के तो पायल तक ही नजर गई मेरी। मालूम हुआ कि रावण सीता को किस तरफ ले गया है तो फिर राम ने अपना लश्कर बनाया जिसमें एक से एक जाबाज सिपाही थे और वो कई मुश्किलों को तय करते हुए लंका आए कि जहां पर दोनों फौजें आमने सामने तैयार हो गईं। उनमें जंग शुरू हो गई। जंग भी ऐसी खतरनाक कि हर तरफ गर्दो गुबार इतना था कि हाथ को हाथ न सुझाई दे। आवाज इतनी कि कानों पड़ी आवाज न सुनाई दे और जमीन की मिट्टी और आसमान की हवा में खून घुल गया था। जंग होते होते एक ऐसा लम्हा भी आया कि रावण कि जिसने कल रात अपनी जान गंवाने का फैसला कर लिया था उसकी नजर जंग करते हुए राम पर पड़ी और राम के जमालो जलालो हुस्नो जवानी का वो मुरीद हो गया और कहने लगा शिकस्त फतह नसीबों से है मिलती मगर मुकाबला इस नौजवान ने क्या खूब किया। जो इसके हाथों से मिल जाए वो शिकस्त क्या हो। मेरी निगाह में मैं फातहे अजीम हुआ। ये कहकर उसने अपने सीने से सिपर हटा दी। ये मौका पाकर राम ने अपनी कमान संभाली और एक दंदनाता हुआ तीर आकर रावण की छाती में पेवस्त हो। अपने सरदार के तीर लगता देखकर रावण की पूरा लश्कर वहां से भाग गया। हंगामा अजीम बरपा हुआ और इस तरह राम की जीत का बिगुल बजाया गया कि जिसकी आवाज अशोक वाटिका में बैठी सीता तक गई। बहुत खुश होकर सीता राम के वहां आने का इंतजार करने लगी। हाजरीन, एक बज़ाहिर तौर पे तो एक बहुत बड़ी जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक इम्तिहान और बाकी था। ये इम्तिहान अग्नि परीक्षा है। आग में कदम रखने से पहले सीता ने एक नजर लक्ष्मण पे डाली तो वो वक्त याद आया कि जब उसने लक्ष्मण को बेकसूर
दिल जलाया था। अग्नि परीक्षा जिसकी कई बहसें हो चुकी है और कई नज़ारियों से हमने देख चुके हैं। आज हमने सिर्फ ये सोचा कि अगर इंसानियत और इमोशंस क्या बोलते इंसानी हैं, जज्बात के नजरिए से इंसानी जज्बाती नज़रियों से अगर देखा जाए तो कैसा होता है। तो ये जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये सब एक अलग दास्तान है। फिलहाल ये जो दो फनों ने मिलकर एक सफर शुरू किया था यहाँ खत्म होता है। शुक्रिया। Well, I had never seen anything like that or never heard Ramayana in those words. So did you love it? Actually, you guys, I'm sure you are curious to know what the process was like, how did they come together and build this all together. So I'm guessing you have a lot of questions to ask to them. Do you? Okay, so you have. So they are open to take questions, so you can fire away. You mind if you just sit up? So I was also part of bringing them together, so I will also take questions if you have any. Yeah, you can go ahead. Why Ramayana? So why Ramayana? We did stop on our way of, should it be Ardhanarishwara? Should it be something as relatable and arguable as feminism? And then we thought, let's focus on emotions. And we were actually very excited about how the same emotion was done enough justice by his lyrical texture as much as our gestures and mudras could. So it was an amazing convergence to see how the same thing could be portrayed in two ways. So we took four emotions: Sita's playful, instance. We took Sita in Shringara, in love, where she marries Rama, and then we took Sita in dilemma, hesitant, disobedient, getting herself into trouble, and finally the last thing which we left open to your interpretation. Where we're talking about rather like a judgment day kind of. So we were looking at intensifying emotions, and this was just like the first wonderful pasture we landed in.